کہ جو عرب کے جو لوگ تھے، عربی جو لوگ تھے، وہ مومنوں کا طور طریقہ دیکھ کر، مومنوں کے طور طریقے، اچھے اخلاق دیکھ کر، تو وہ عربی جو نئے نئے مسلمان بنے تھے نا، وہ بھی خود کو مومن کہنے لگے، مومنوں میں شمار کرنے لگے کہ بھائی ہم بھی مومن ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ الحجرات نازل فرما دی اور فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا۔ مدعا کیا تھا؟ مدعا تھا اذان۔ اذان کی بات تھی کہ تم نے سوال کیا مجھ سے کہ یہ جو اذان ہوتا ہے مسجدوں سے، تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ اذان کو دہرانا چاہیے، اذان کے الفاظوں کو اپنے الفاظ کے ساتھ کیوں دہرانا چاہیے؟ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تم نے اگر ہم سے یہ سوال کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو گندگی ہے، جو ہمارے اندر جو دل میں گندگی ہے، جو نار ہے، اس کی صفائی کے لیے اس کے پیچھے کا راز، وہ ریجن یہ ہے کہ اذان کے ساتھ جب ہم بھی اذان کو ملاتے ہیں، اذان کے ساتھ دہراتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل میں جو گندگی ہے، جو میل ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے پرتی رغبت، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر کی جو ظلمات ہے وہ دور ہوتی ہے، ہمارے اندر کی کٹھورتا، اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں کے پرتی جو کٹھورتا بنی ہے، وہ کٹھورتا دور ہوتی ہے، نرمی ہمارے اندر آتی ہے، ہمارے اندر کی گرمی دور ہوتی ہے، ہمارے اندر سادگی آتی ہے، ہمارے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں لوگوں کے پرتی، اللہ کے بندے، اللہ کے مخلوقوں کے پرتی۔ بہت سارے فائدے ہیں، اس کے فضیلت ہیں، اذان کے ساتھ الفاظ ملانے کے، اسے دہرانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے یہ فائدے ہیں، سب سے بڑی فائدے تو یہ ہیں، اس کا ایگزامپل، اس کا مثال سرکار گوھر شاہی نے دیا ہے۔ سرکار گوھر شاہی پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح بادل سے بادل ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے نا، اسی طرح سے پتھر ٹکراؤ گے تو چنگاری نکلتی ہے، لوہے سے لوہا ٹکراؤ گے تو چنگاری نکلے گی۔ اور جب اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے، اس اذان کے ساتھ اگر تم اپنے الفاظ ملاؤ گے، ٹکراؤ گے، تو کیا اس سے نور نہیں بنے گا؟ بے شک نور بنے گا، اور وہ نور تمہارے اندر کی گندگی کو، تمہارے میل کو، تمہارے جنگ کو دور کرے گا۔ جس گندگی کی وجہ سے، جس میل کی وجہ سے تمہارے اندر کٹھورتا، ظلمات بنی ہوئی ہے، تمہارے اندر جو غلط فہمی، کسی کے پرتی بد اخلاقی بنی ہوئی ہے، وہ دور ہوں گے جب تمہارے اندر نور آئے گی۔ یہ اس کے فائدے ہیں، یہ اس کے فضیلت ہیں۔ تو یہ عام مسلمانوں کو یہ حکم، یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ عام مسلمان جو ہے نا، وہ عام مسلمان ہے نا، کتابی مسلم ہے نا، انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ مومن بننے کے لیے ذکر اللہ بے حد ضروری ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر اتارنا، اللہ کا کلام، کلمہ طیب کا نور اتارنا، دل کی دھڑکنوں میں اتارنا، یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے کلمے کا نور اتارنا دل میں ضروری ہے، تو مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کو یہ شریعت کا حکم جاری کیا گیا، یہ طریقہ بتایا گیا تاکہ کم سے کم اتنا کرو کہ جب پانچوں وقت مسجدوں سے اذان کی صدائیں گونجے تو اس کے ساتھ تم اذان کے ساتھ اپنے الفاظوں کو دہراؤ، ملاؤ اس اذان کے ساتھ، تاکہ کچھ تو راحت ہو، کچھ تو تمہارے اندر کی نار، وہ ظلمات، وہ گندگی دور ہو۔ اس لیے عام مسلمانوں کو یہ ریکمینڈ کیا گیا۔ لیکن جو مومن ہیں وہ تو ظاہر میں بھی اللہ کے ذکر میں کھوئے ہیں، باطن سے بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہیں، اللہ کی یاد میں ہی ہیں۔ مومنوں کے لیے ہی تو ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے
सोते जागते हत्ता के खरीद फरोख्त करते करवटों के बल भी अल्लाह के जिक्र में रहते हैं। ये मोमिन के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो मोमिन तो भाई रहते ही रहते हैं अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, क्योंकि अल्लाह ने उनके मर्तबे वो दर्जात कुरान में भी बयान फरमाए हैं। सूरतुल हुजरात में अल्लाह ने फरमाया ना, कालतिल अरबु आमन्ना, ये अरबी कहते हैं कि जो अरब के जो लोग थे, अरबी जो लोग थे, वो मोमिनों का तौर तरीका देखकर, मोमिनों के तौर तरीके अच्छे अखलाक देखकर, तो वो अरबी जो नए नए मुसलमान बने थे ना, वो भी खुद को मोमिन कहने लगे, मोमिनों में शुमार करने लगे कि भाई हम भी मोमिन हैं। तो अल्लाह ने सूरतुल हुजरात नाजिल फरमा दी और फरमाया कि कालतिल अरबु आमन्ना, कालतिल अरबु आमन्ना, ये अरबी कहते हैं कि ये मोमिन हो गए। कुल लम तुकमिन, इनसे कह दें या रसूल अल्लाह, इनसे कह दें कि ये अभी मोमिन नहीं हुए हैं। वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहें कि कलमा पढ़कर इस्लाम लाए हैं, कलमा पढ़कर इस्लाम लाए, मुसलमान हुए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमान फ़ी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान इनके कुलूब में, इनके कल्ब में दाखिल ही नहीं हुआ, और ये खुद को मोमिन कह रहे हैं, तो लिहाजा ये खुद को मोमिन ना कहें। तो ये मोमिन और मुसलमानों का फ़र्क अल्लाह ने कुरान में जाहिर कर दिया कि कलमा पढ़कर सिर्फ मुसलमान हुए हैं, अभी किताबी मुस्लिम है, ये अभी मोमिन नहीं हुए हैं। मोमिन होने का जो ताल्लुक़ है वो कुलूब से है, वो दिल से है। दिल में अल्लाह का नूर उतरना, अल्लाह का जिक्र उतरना, अल्लाह की यादें उतरना, सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में रहना, ये मोमिन होने का अलामत है, निशानी है। तो ऐसे मुसलमान जो नए नए मुसलमान हुए थे, इन लोगों के लिए ये तरीका बताया गया कि जब मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनो तो उस अजान के साथ अल्फाज दोहराया करो, ताकि तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ़ हो, तुम्हारा रग़बत मोहब्बत अल्लाह की ओर हो, अल्लाह से बना रहे, बरकरार रहे, और अल्लाह का नूर तुम्हारे अंदर उतरे, इसलिए बताया गया था। लेकिन हम लोगों को तो सरकार गौहर शाही ने ऐसी नेमत अता फरमा दी है कि जिक्र कल्ब की वो दौलत अता कर दी है, वो खजाना बातिन अता कर दी है कि जिक्र में इजाज़त देकर अल्लाह का जिक्र दिल की धड़कनों में उतार दिया है। अब लेटे हैं तो लेटे हुए भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है, ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं तो बाज़ार में घूम रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह हो रहा है, हत्ता के करवटों के बल भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं तो भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अलामत और नेमत है अल्लाह की, और इसी मकामात पर हर मुसलमान को पहुंचना लाजमी है कि ख़यालात जो है, ये दिल की धड़कन जो है, जो मन है, वो अल्लाह अल्लाह में रहे, जिस्म काम काज में रहे, बीवी बच्चों में रहे, दुनियादारी में रहे, पर मन ख़यालात दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह में रहे, अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में रहे। और ऐसा अगर होने लगा तो फिर हर इंसान के अंदर की जो कठोरता है, जो सख्त दिली है, वो दूर हो जाएगी, और अच्छे अखलाक उसके अंदर आ जाएंगे, भाईचारा उसके अंदर आ जाएंगे, लोगों को अच्छे मोहब्बत से अल्लाह के मखलूकों को समझना, और रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, वो कर्तव्य, वो फ़र्ज निभाना, ये सब आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल किताबी मुस्लिम हैं, तो इसलिए इनको रिकमेंड किया जाता है कि ये आप ये करें, ताकि वहाँ तक पहुँचें जो असल मकामात है, जो मोमिन का है, जो मोमिनीन का है, जो मोमिनों का है, उस मकामात तक आप पहुँचें। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि ये सब शरीयत के अरकान हैं, इसे पूरा करें। ये शरीयत के अरकान है, नमाज है, और अजान के आवाज़ के साथ आवाज़ दोहराना, ये सब शरीयत के अरकान हैं, ताकि असल मकामात पर आप पहुँचें, मोमिन के दर्जात पर आप पहुँचें। मोमिनों के दर्जात पर कोशिश करें पहुँचने की। मोमिनों का दर्जात करने के लिए किसी मर्द कामिल, मुर्शिद कामिल का दामन तो थामना पड़ता है भाई, ऐसे तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। दिल की धड़कनों को अल्लाह की याद में लगाना, अल्लाह के जिक्र में लगाना,
कोई नहीं कर सकता, उसके लिए मुर्शिद कामिल ज़रूरी है। सरकार गौहर शाही आज इस दौर में वही हमारे लिए, हर पूरे इंसानियत के लिए वो मुर्शिद कामिल हैं, जो ये अमल, ये तरीक़ा लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और इस काम में लोगों को लगा रहे हैं कि जिसके कारण लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह अल्लाह में लग रहे हैं, अल्लाह की याद में, याद इलाही में डूब रहे हैं। जाहिर तो जाहिर और बातिन से भी अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र में लोग लग रहे हैं, खोए हुए हैं, और यही कामयाबी है। इसी के लिए कुरान में भी हुक्म आया कि सोते जागते, उठते बैठते, हत्ता के करवटों के बल भी अल्लाह के याद में, जो अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं। तो इस मकामात पे पहुंचना हर बंदे के लिए, हर उम्मत रसूल के लिए लाजमी है, बेहद ज़रूरी है, और यही दर हकीकत कामयाबी का रास्ता है। और जब तक इस मकामात पर आप नहीं पहुंचते हैं, इस दर्जात पर आप नहीं पहुंचते हैं, मुर्शिद कामिल का दामन आपने नहीं थामा है, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से आप नहीं जुड़े हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो आम मुसलमान हैं, जो किताबी मुसलमान हैं, इनके लिए ये रिकमेंड किया गया, ये शरीयत के अरकान, ये अजान की सदाएं जो आती है, इसके साथ जो आवाज़ मिलाने के लिए, दोहराने के लिए जो हुक्म है, ये शरीयत के अरकान है, जो आम लोगों के लिए जब तक मुर्शिद कामिल नहीं थामे हैं, उस मकामात पर नहीं पहुँचे हैं, तब तक के लिए कम से कम इतना ज़रूर करें। आम मुसलमानों को ये हुक्म किया गया है कि इतना ज़रूर करें कि अपने अल्फाजों को अजान के साथ दोहराएं, ताकि तुम्हारे अंदर की कठोरता दूर हो, तुम्हारे अंदर नम्रता पैदा हो, तुम्हारी मोहब्बत, वो रक़बत अल्लाह से बने। जब मोहब्बत अल्लाह की पैदा होने लगेगी, रक़बत पैदा होने लगेगी, तुम्हारे कठोरता अंदर की दूर होने लगेगी, तो तुम्हारे अंदर जब अच्छे अखलाक आने लगेंगे, तो फिर तुम्हारी दिल में ये तब्दीली आएगी, तुम्हारे मन ख़यालात में तब्दीली आएगी। फिर दिल करेगा कि अल्लाह वालों से निस्बत कायम करें, वलियों से निस्बत कायम करें, सूफिया इकराम से भी निस्बत कायम करें, ऐसे हस्तियों को तलाशें कि जिनसे जुड़कर आगे के जो मकामात हैं, जो आगे के दर्जात हैं, जो वो भी हासिल कर लें, जो मोमिन और मोमिना के लिए है, जिसके लिए कुरान में हुक्म आया है, तो वो भी हासिल कर लें। ये चाहत पैदा होगी आपके अंदर से। तो जब चाहत पैदा होगी, तो चाहत पैदा होने से पहले ये काम करोगे, ये अमल करोगे, शरीयत के अरकान पूरे करोगे, ये छोटे छोटे जो शरीयत हैं इसे पूरे करोगे, तो ना अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, वलियों से मोहब्बत पैदा होगी। ये छोटे छोटे जो शरीयत के अरकान इसे पूरे करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत पैदा होगी, दिल में तब्दीली पैदा होगी, और दिल में पैदा होगी, दिल में तब्दीली पैदा होगी, तो फिर तुम अपने लिए मुर्शिद कामिल, सूफिया इकराम, वलिया, औलिया अल्लाह से निस्बत कायम करने की तमन्ना पैदा होगी, तो ये मोहब्बत पैदा करने के लिए, दिल की सफाई, ये दिल की गंदगी दूर करने के लिए, अपने अंदर की गंदगी को दूर करने के लिए और अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के लिए, ये शरीयत के छोटे छोटे तरीक़े हैं, ये अरकान हैं, जिसको करने का हुक्म दिया गया है, ताकि तुम्हारे अंदर की तब्दीली आए, तुम्हारे अंदर बदलाव आए, ताकि तुम कदम बढ़ाओ, कदम उठाओ निस्बत कायम करने के लिए औलिया अल्लाह से, वलियों से, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से। और निस्बत कायम जब हो जाएगी, कदम जब उठेंगे तुम्हारे कि चले अब वलियों से भी निस्बत कायम करें, जो असल हुक्म है, जिसके लिए जो मोमिन का दर्जा है वो हासिल कर लें, जिसके पे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के रसूल भी राज़ी, जिसको अल्लाह पसंद करता है वो भी हासिल कर लें। इसके लिए जब कदम उठाओगे, हासिल करोगे जब इस चीज़ को, तो अल्लाह भी इसमें मदद करेगा। अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के फ़रिश्तों की जानिब से, अल्लाह के चंद ख़ास मुवक्किलात हैं,
उनके ज़रिए अल्लाह तुम्हारा मदद करेगा तुमको आगे मकामों मर्तबों तक पहुँचने में। लेकिन ये मोहब्बत, ये तब्दीली तुम्हें तब आएगी जब शरीयत के अरकान पूरे करोगे, जैसे कि ये अजान के साथ अपने अल्फाजे मिलाना, अजान को दोहराना, और भी बहुत सारे ऐसे शरीयत के अरकान हैं छोटे छोटे, जैसे नमाज भी हैं, रोज़े भी हैं, और हुजूर की बहुत सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जिस पर अमल करना है। और उससे फ़ायदा यही है कि आगे का मनाजिल, वो मकामात तुम्हें हासिल हो, मैसर हो, तुम्हारे अंदर की इच्छा पैदा हो, तुम्हारे अंदर दिल में तब्दीली पैदा हो। और अगर तुमने शरीयत को ही तर्क कर दोगे और छोड़ दोगे, ये जो छोटे छोटे शरीयत बताए गए हैं इसे छोड़ दोगे, तो तुम्हारे फिर दिलों में वो रग़बत, वो मोहब्बत, वो तब्दीली आएगी ही नहीं। और तुम्हारी तब्दीली, तगय्युर नहीं आएगा तो तुम्हारे कदम भी आगे नहीं उठेंगे, फिर तुम रह जाओगे आम मुसलमान की किताबी मुसलमान बनकर रह जाओगे। और आम मुसलमान और किताबी मुसलमान जो होता है, इन्हीं मुसलमानों में मुनाफिक होते हैं। आप जब तक मुसलमान हैं तो आपके साथ ये ख़तरा हमेशा बना हुआ है मुनाफिक होने का, मुनाफिकीन बनने का। और मुनाफिक का जो मकाम है वो दोजख है, ठिकाना दोजख है। जो काफिर का मकाम है वही मकाम मुनाफिक का है। तो इसलिए आम मुसलमानों से बचने की कोशिश करो, किताबी मुसलमान बनकर ना रहें। मुसलमान से आगे का जो दर्जा है, जो मोमिना बनने का, वो दर्जा हासिल करने की कोशिश करें। तो मुसलमान के लिए रिकमेंड है कि ये शरीयत को फॉलो करें। तो शरीयत फॉलो करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह रसूल से, ताकि आगे का मकाम, वो मंजिल आप तय कर सकें, आपके अंदर इच्छा पैदा हो सके, आगे का मकामात हासिल करने की आपके अंदर इच्छा पैदा हो सके। यही है फ़ायदा शरीयत पर अमल करने का। तो अजान सुनने के बाद उसके साथ दोहराना, और भी दीगर बहुत सारे शरीयत के अरकान हैं जो अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मतों के लिए, मुसलमानों के लिए रिकमेंड किए हैं, बताए हैं। इस पर अमल करिए और अमल करके जो है अपने अंदर तगय्युर, बदलाव लाइए, ताकि आगे का मनाजिल, वो मंजिल आप तय कर सकें। आपके अंदर हिम्मत ताकि पैदा हो, आपके अंदर इच्छा पैदा हो, और आप कदम बढ़ाएं वलियों की तरफ, औलिया अल्लाह की तरफ, सूफिया इकराम की तरफ, जो हक है, जो असल मनाजिल है, जो सिराते मुस्तकीम है। और ये इच्छा पैदा हो सरकार गौहर शाही से निस्बत कायम करने की, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से निस्बत कायम करने की, वो असल तरीक़ा अमल सीखने की, जो जिससे बंदा मोमिन बनता है। और आपको अपने दिल में, अभी तक तो लफ्ज़ों पर ही आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अजान के साथ दोहरा रहे हैं, आपके अंदर इच्छा पैदा हो कि मेरे दिल की धड़कनों में भी अल्लाह रच बस जाए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र उतर जाए। तो ये इच्छा पैदा हो, जब इच्छा पैदा होगी तो आप सरकार गौहर शाही के ओर कदम बढ़ाएंगे, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की ओर कदम बढ़ाएंगे। जो दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र कैसे जारी किया जाता है वो तरीका बताते हैं। आप इस चीज़ को हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे। अब आपने कदम नहीं उठाया, आप किताबी मुसलमान बनकर रह गए, तो यकीनन कि मुसलमानों में मुनाफिक होते हैं, और मुनाफिक का ठिकाना जहन्नुम है, जो काफिर का ठिकाना है, इतना जान लें। तो क्या आप फैसला करें कि आपको मुनाफिक बन के रहना है, क्या किताबी मुसलमान बनकर मुनाफिक ही रहना है, या फिर इससे आगे का दर्जात, जो मुकम्मल दर्जात है, जो हक है, वो मोमिन और मोमिना का, वो मकामात हासिल करना है। ये फ़ैसला अब आपके ऊपर है। अब आप कीजिए, सोचिए कि आपको करना क्या है। हम लोगों को के लिए क्या है, हम लोगों को सरकार गौहर शाही ने इजाज़त ज़िक्र कल्ब दे दिया है। अब इजाज़त ज़िक्र कल्ब दे दिया है तो हमारे जाहिर से भी अल्लाह अल्लाह हो रही है, हमारे बातिन में भी अल्लाह अल्लाह हो रही है, हत्ता के सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह अल्लाह हो रही है, ख़रीद फरोख्त करते हैं उस वक्त भी अल्लाह अल्लाह हो रही है, जिस्म काम काज में है, बीवी बच्चों में है, परिवार संभालने में, दुनियादारी में है, पर हमारा मन, हमारा दिल अल्लाह अल्लाह में है। तो हमें अजान के साथ आवाज़ मिलाना ना मिलाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर से भी
اللہ اللہ ہی چل رہا ہے، یہ ظاہر زبان ہے نا، اس سے اللہ اللہ ہی چل رہا ہے۔ ابھی بھی بات ذکر جو میں کر رہا ہوں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ولیوں کا ہی ذکر کر رہا ہوں، اور باطن میں بھی اللہ اللہ ہی چل رہا ہے، اللہ کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو سرکار راحت کا سامان لائے ہیں، سرکار کا ہرسائی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب سوچنا آپ مسلمان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس سوال آپ نے کیا کہ اذان کے ساتھ الفاظ ملانا لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، تو اس کے فائدے تو میں نے بتا دیے، اس سے فائدے بے شمار ہیں، آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن دل سے ملانا پڑتا ہے، دل سے کرنا پڑتا ہے، صرف اذان کے ساتھ آواز ملانے سے نہیں بلکہ شریعت کے باقی جو ارکان ہیں وہ بھی پورے کریے۔ لیکن اگر باقی نہیں پورے ہو رہے تو کم سے کم چھوٹے سے شروعات کیجئے، کم سے کم اللہ کی صدائیں، اللہ کی جب نام پکارے جائیں، اللہ کا پکار ہو مسجدوں سے تو اس کے ساتھ دہرائیں، چھوٹے سے ہی شروعات کریں گے تو پھر اللہ اور آپ کو اس میں اضافہ پیدا کرے گا، پھر آپ کو اور اچھا بڑھے گی، جب آگے اچھا بڑھے گی، محبت پیدا ہوگی تو پھر ولیوں سے بھی نسبت قائم کرنے کی، اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرنے کی، سرکار گوھر شاہی کو سمجھنے کی بھی اچھا پیدا ہوگی، اور ان سے وہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے ذکر کو کس طرح اتارا جاتا ہے یہ بھی اچھا پیدا ہوگی۔ تو شروعات کریں، ہم لوگوں کو تو اللہ نے پار کر دیا ہے، سرکار گوھر شاہی سے جوڑ کر ہماری زندگی تو سنوار دی ہے، ہمارے لیے تو ظاہر باطن بھی اللہ ہی اللہ میں ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ صلاح دیتا ہوں، اور آپ نے سوال کیا تو آپ کے سوال کا میں نے جواب دیا کہ یہ اس سے یہ فائدہ ہے۔ اب کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا اچھا ہے، اللہ بھی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتا۔ اب آپ طے کریں کہ آپ کو منافق کافر بن کے رہنا ہے، منافق مسلمان بن کے رہنا ہے، یا مومن مومنہ میں آپ کو جانا ہے، شامل ہونا ہے، آپ کو اپنے درجات بلند کرنے ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو سدا اس دنیا پہ رہنا ہے یا مر کر قبر میں جانا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ مر کر ہم کو قبر میں جانا ہے اور کامیابی ہے، قبر کے منازل طے کرنے میں ہی کامیابی ہے، قبر کے جو منازل ہیں اسے طے کرنے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، تو اس کی تیاری کریں۔ اگر یہ سمجھ جاتے ہیں تو وقت رہتے تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہیں، آپ جانوروں کی مانند ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، آپ کے اوپر عذاب ہی عذاب ہونے والے ہیں، سوالوں کے بوچھار ہی ہونے والے ہیں۔ ابھی وقت رہتے سنبھل جائیں تو زیادہ بھلا ہے آپ کے لیے، اب اپنے فیملی کو اور پریوار کو بھی سمجھا دیں، طریقے پہ لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ زندگی 4 دن کی ہے، کب کیا ہو کسی کو پتہ نہیں، پھر موقع نہیں ملنے والا، ابھی موقع ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی سے شروع کریں۔